مشن NMMS 2022 اس سیشن میں آپ تمام پارٹیسپینٹس کا خیر مقدم ہے. آپ لوگوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ پیش رفت آپ لوگوں کے حق میں بہترین نتائج کا باعث بنے اور ہماری قوم اس اہم امتحان میں نہ صرف پاس ہو بلکہ میرٹ کے جھنڈے پرچم لہرانے والی بنے. پیارے بچوں، آج کے سیشن کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی جو صحیح کاملہ کی ہے وہ ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز ہیڈ ماسٹر شاہین اسکول کراٹ الناصر مومن صاحب کی کوشش ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سر نے ہم لوگوں کے گائیڈنس کے لیے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا، اس کے ساتھ ہی اس پر مسلسل ہمیں اپڈیٹ دیتے رہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے NMMS کے پرچوں کے اوپر ایک کتاب بھی شائع کی جو ہم تک پہنچ چکی ہے. اگر آپ لوگوں تک نہیں پہنچی ہے تو آپ سر سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس پرچوں کی کتاب سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہم آگے بڑھیں اس سے پہلے تمام بچے اور ٹیچرز کچھ باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زوم کا یہ سیشن یہ ہمارا بیسک سیشن ہے. بیسک سیشن 40 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ کا زوم بند ہو جائے تو آپ کو دی گئی لنک کو دوبارہ سے ڈائل کرنا ہے، دوبارہ سے کلک کرنا ہے اور اگلے سیشن کے لیے تیار ہونا ہے. 8 بجے شروع ہونے والا یہ سیشن انشاءاللہ 1.5 سے 2 گھنٹے، ہو سکتا ہے 2.5-3 گھنٹے تک بھی چلے. ہماری کوشش ہے کہ 2 گھنٹے میں ہم سب چیزیں سمیٹ لیں گے. آپ لوگ اگر میٹنگ سے باہر ہوتے ہیں تو آپ دوبارہ سے ڈائل کر کے اس کو جوائن کرنا ہے. ہر 40 منٹ پر آپ کو میٹنگ جوائن کرنا ہے. ٹیچرز اس طرف دھیان دیں اور بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے پیرنٹس اس طرف دھیان دیں. آج کا سیشن بہت ہی بہترین ہے اور اس سیشن کو کنڈکٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مینا مس موجود ہیں. اس سے پہلے کہ میں مینا مس کو سیشن کے لیے آواز دوں، میں چاہتا ہوں کہ آج اس سیشن کی غرض و غایت اور اس سے متعلق بہت ساری باتیں جو الناصر مومن صاحب ان کے ذہن میں ہے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں. تمام بچوں سے ایک خاص ہدایت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے مائک میوٹ رکھنا ہے اور جب آپ لوگوں کو بولنے کے لیے پرمٹ کیا جائے گا تب آپ لوگ ایک ایک کر کے اپنی باتیں رکھ سکتے ہیں. اس سیشن کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے نظم و ضبط اور ڈسپلین کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے. نظم و ضبط اور ڈسپلین آپ کے مائک بند ہوں گے تو ہی قائم رہ سکتا ہے. میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں شاہین اسکول کراٹ کے ہیڈ ماسٹر صاحب الناصر مومن صاحب سے کہ آج کے اس سیشن کی غرض و غایت اور مختصر سا تعارف پیش کریں. الناصر مومن صاحب. جی سر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز اساتذہ کرام، صدر مدرس، عزیز طلبہ اور سرپرستوں، آپ جانتے ہیں یہ دور مقابلہ جاتی امتحانات کا دور ہے. ایک زمانہ تھا، پرانے زمانے میں جس طرح سے میدان جنگ، اسی طرح سے تلوار بازی، گھڑ سواری، نیزے بازی، ان صلاحیتوں کے جس کے پاس موجود ہوتے تھے وہ اس زمانے کا ایک بہت بڑا حکمران ہو جاتا تھا، راجہ ہو جاتا تھا.
या बादशाह हो जाता था या किसी इलाके का एक बड़ा वजीर हो जाता था। लेकिन आज के दौर में मैदान जंग एक इम्तिहान गाह बन चुकी है। उसी तरह से यहाँ पर घुड़सवारी, तलवारबाजी, नेजेबाजी अब काम नहीं आएंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके जहानत पर आपका जो मुस्तकबिल है, करियर है, वो यहाँ पर आपका डेवलप होगा और आप आगे की जो जिंदगी है वो खुशगवार गुजार सकते हैं। अजीज तलबा, इस इम्तिहानी दौर के अंदर स्कूली इम्तिहानात के साथ साथ इन मुकाबला जाती इम्तिहानात में हिस्सा लेना जरूरी है, क्योंकि 10वीं के बाद आप मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर एडमिशन चाहते हैं तो वहाँ पर नीट और JEE जैसे मुकाबला जाती इम्तिहानात हैं, CET जैसे इम्तिहानात हैं, और आगे आप जब जाएंगे हायर एजुकेशन के लिए, डिग्री के बाद में, ग्रेजुएट के बाद में MPSC, UPSC जैसे मुकाबला जाती इम्तिहानात हैं। इन स्पर्धा परीक्षाओं के जरिए ही हम आज के इस हुकूमत के बड़े बड़े ओहदों पर हम मुकर्रर हो सकते हैं और हमें वो मौका मिल सकता है। मामूली आज कांस्टेबल की भी अगर भर्ती है, देखिए इस साल भी बहुत बड़ी भर्ती हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से हो रही है, पुलिस भर्ती है, उसी तरह से तलाटी की भर्ती है, या फिर कलेक्टर, नायब तहसीलदार, नायब जिलाधिकारी हैं। ऐसे बड़े बड़े महकमों के अंदर जब आपको सिविल सर्विसेज के अंदर इम्तिहानात देने होते हैं, तो ये जो 5वीं की स्कॉलरशिप है या 8वीं का स्कॉलरशिप है या अभी जो आप NMMS की इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, इसमें जो ज़हनी आजमाइश, मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, ये बहुत ही कारआमद चीज है। लिहाजा अभी से स्कूली जमाने से ही बच्चों के अंदर शौक और उसके अंदर दिलचस्पी पैदा हो, इस नुक्ते को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत महाराष्ट्र ने 8वीं जमात के लिए इम्तिहान मुकर्रर किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पूरे महाराष्ट्र में कहीं पर भी, मुझे तकरीबन कई साल से मैं तलाश करता रहा कि NMMS के जो हुकूमत के जो पर्चे हैं, इनके अलावा दीगर मशकी सवाली पर्चे कहीं नजर नहीं आते थे। इसी बात को मद्देनजर रखकर हमारे एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी मोहतरम जनाब अयाज भाई बागबान और हमारे असातिज़ा ने मिलकर मुश्तरका कोशिशों की बाद ये एक सवाली पर्चे की एक किताब है, जिसमें 10 पर्चे ज़हनी आजमाइश के और 10 पर्चे स्कूली निसाब के ताल्लुक से जो है, इस तरह से 20 पर्चों पर मुश्तमिल एक किताब हमने शाये की है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तकरीबन 90 सवालात के हिसाब से 900 और वो 900 1800 सवालात की तैयारी हो। और हमारा मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा हर जिले के मेरिट लिस्ट में अपने उर्दू मीडियम के तलबा उसमें शरीक हों। हमें देखने में नजर आता है कि जो मेरिट लिस्ट होती है, गुणवत्ता यादी होती है, हर जिले के लिए कुछ कोटा मुकर्रर होता है वहाँ की आबादी के हिसाब से, कहीं 400 होता है, कहीं 500, कहीं 600। तो लिहाजा उस पूरे कोटे के अंदर उस तादाद में हमारे उर्दू मीडियम के तलबा कसीर तादाद में आ जाए, यही हमारा एक मकसद है। और यही मकसद को लेकर हमने पूरे महाराष्ट्र में मुख्तलिफ मुकामात पर हमने किताब फराहम की है। हालांकि इससे कुछ नफा हासिल करना है हमारा मकसद नहीं है, बस हमारा मकसद है कि तलबा के अंदर वो दिलचस्पी पैदा हो जाए और उनके मुताले के लिए मजीद मशकी सवाली पर्चे यहाँ पर उनको मिल जाए। साथ ही साथ यहीं पर हम खामोश नहीं रहते हुए, किसका हुआ? हेलो, तो हमारा मकसद ये है कि हमने अपने जो पूरे महाराष्ट्र के जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनको भी हमने इसमें दावत दी है, जिसमें आज मोहतरमा मीना मिस मुंबई के जो माहिर एक उस्तानी हैं और ज़हनी आजमाइश पर काफ़ी उबूर रखती हैं, तो हमने उनको दावत देते हुए अपनी दावत को लब्बैक कहते हुए उन्होंने अपनी यहाँ पर एक लेक्चर अटेंड करने का इरादा किया। और आज ये सेशन शुरू होने में थोड़ी देर हो गई है, इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ टेक्निकल
جو بھی پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے، اور تکنیکی ماہر ہمارے محترم عارف محمد علیہ سر کا، کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر اس پروگرام کے اندر اپنا وقت دیا ہے. لہذا میرا مقصد یہی ہے کہ اپنے قوم کے طلباء زیادہ زیادہ تعلیم کے میدان میں اور خاص طور سے مقابلہ جاتی امتحانات کے اندر نمایاں کامیابی حاصل کرے. لہذا زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے میں محترمہ مینا مس سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے زرین خیالات سے طلباء کو سرفراز کریں، اور طلباء سے گزارش ہے کہ وہ محض دیکھتے نہیں بیٹھتے ہوئے، اس کی اگر موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے تو اسکرین شاٹ لیجئے، یا پھر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں تو اس کو اپنی بیاض میں نوٹ ڈاؤن کیجئے. یہ تمام باتیں بہت ہی قیمتی ہیں، انشاءاللہ کا فائدہ آپ کو پہنچے گا. طلباء سے گزارش ہے کہ اپنے مائک کو میوٹ کرے، ویڈیو کو بھی بند کرے. جی سر، محترمہ مینا مس سے گزارش ہے کہ آپ اپنی آگے کی کاروائی شروع کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مینا مس ایک منٹ. ہاں، میں جو ہے سر نے جو باتیں کہیں آپ لوگوں تک آج کے سیشن کا مقصد جو آپ سے شیئر کیا، تو یہاں تمام اساتذہ سے میری ریکویسٹ ہے کہ سر نے جو بک تیار کی ہے پرچوں کی، آپ سر سے کانٹیکٹ کر کے اپنے بچوں کے لیے وہ بک منگوا لیجئے، تاکہ آپ لوگ بہت ہی اسپیسیفکلی اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہیں. سر نے جو مقصد بتایا کہ ہمارے اردو میڈیم کے بچے زیادہ سے زیادہ اس امتحان میں نہ صرف کامیاب ہوں بلکہ اس امتحان میں اسکالرشپ حاصل کریں. تمام پیرنٹس، ٹیچرز، ہیڈ ماسٹرز اور بچے اس امتحان میں میرٹ حاصل کرنے کے بعد آپ لوگوں کو 12ویں تک ہر مہینہ اسکالرشپ ملتی ہے. تقریباً اس امتحان میں بہت بہترین کامیابی حاصل کر لی جائے تو 48,000 روپے اسکالرشپ ملتی ہے. 48,000 روپے یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے، یہ بہت ہی اچھی رقم ہے. اس رقم میں بچے اپنے بہت سارے اخراجات خود کفیل بن کے پورے کر سکتے ہیں اور اپنے والدین پر کسی قسم کا بار نہیں بن سکتے. تو آپ لوگوں کو اپنا ہدف بنانا ہے. سر نے جیسے بتایا کہ گھڑ سواری، تلوار بازی، تیر اندازی، ہوا کیا؟ اس ہنر کے ذریعے سب آگے بڑھتے تھے. آج ہمارے پاس ان ہنر کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک نیا ہنر کمپٹیٹیو ایگزام کا ہے، اور اس کمپٹیٹیو ایگزام کو لے کر آپ کے سامنے آپ کی منزل کی، زندگی کی منزل کی پہلی لیول پر مینا مس آپ کے سامنے آ رہی ہیں. ایک چھوٹا سا مختصر سا مینا مس کا تعارف یہ ہے کہ مینا مس BSc کر چکی ہیں اور ہمارے ساکینہ کا کے آئیڈیل ایجوکیشنل موومنٹ کی بہت ہی فعال ٹیچر ہیں. وہاں پر وہ انچارج ہیں اور اسکالرشپ کی ماہر ہیں. ان کی اسکالرشپ کی مشق کو دیکھتے ہوئے ہماری ممبئی کی میرا روڈ کی ایک بہت ہی نامور انگلش اسکول سینٹ ہارس اسکول کے ٹرسٹیوں نے مینا مس کو اپنے اسکول کے ٹیچرز کی تربیتی پروگرام کے لیے نامزد کیا ہے، اور اب تک وہاں کے ٹیچرز کے کئی سارے سیشن مینا مس لے چکی ہیں. امید ہے پیارے بچوں، جب مینا مس آپ کے ساتھ شروعات کریں گی تو آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا. ایک بات یاد رکھیے کہ ایگزام بہت سارے بچے دیتے ہیں، اور ان لاکھوں بچوں میں میرٹ جن بچوں کو ملتی ہے ان بچوں میں آپ شامل ہیں. میرٹ لینے والا بچہ جس کے پاس جو دماغ ہے وہ بہترین دماغ آپ کے پاس ہے. اب تک جو ہمارے بچے میرٹ نہیں لے پائے اس کی جو وجہ تھی وہ اس سیشن کے ذریعے آپ لوگوں کو دور کرنے کی آسانی ہوگی. اس سیشن میں
टीचर आपको ये सिखाएगी कि हम मेरिट कैसे हासिल करें, जो टेक्निक, जो उस बहुत सारे ज़ाब्ते और बहुत सारी ट्रिक्स जो टीचर शेयर करेगी, उसको आपको बहुत अच्छी तरह जहन में लेना है। तमाम बच्चे, आपके पास बयाज, नोटबुक, पेन, ये सब चीजें होनी चाहिए। आप साथ ही साथ अगर स्कूल में जुड़े हुए हैं तो लिखते चलें, साथ ही साथ अगर इंडिविजुअल मोबाइल से जुड़े हुए हैं तो आप कुछ चीजों के स्क्रीनशॉट लेते चलिए। हम यहाँ पर मीटिंग को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। मीटिंग को रिकॉर्ड करते हुए आप याद रखिए, आपका माइक बंद होना चाहिए। आपकी एक जरा सी भी आवाज पूरे सेशन को खराब कर सकती है। आखिर में फिर मैं इस बात का याद करते हुए कि ये सेशन बेसिक सेशन है और इस सेशन में 40 मिनट के बाद मीटिंग खत्म हो जाती है ऑटोमेटिक। दोबारा आपको मीटिंग का दिया हुआ लिंक क्लिक करना है और ज्वाइन होना है। मैं बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ मीना मिस से कि आप आइए और माइक संभाल लीजिए और अपने बच्चों को संभाल लीजिए। उस मंजिल की तरफ हमारे सफर को ले चलिए जहां हमें कामयाबी की चिड़िया नजर आ रही है और बहुत जल्द उस चिड़िया को हमारे बच्चे हासिल करने वाले हैं। मीना मिस। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आदिफ सर का, और नासिर और मोमिन सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस नेक मकसद के लिए चुना और अपने इस नेक मकसद में मुझे भी शामिल किया। प्यारे बच्चों, अभी आपकी जो मीटिंग है वो 7 मिनट में खत्म हो जाएगी। इस वजह से आप 7 मिनट बाद वापस से ज्वाइन हो जाइएगा। तो अब मैं वक्त ना ज़ाया करते हुए डायरेक्ट सेशन की शुरुआत करती हूँ। आपको इम्तिहान का पैटर्न पता होगा कि इम्तिहान जो है आपका ये NMMS ये 2 पेपर में तकसीम किया गया है। पेपर 1 जो कि आपका है सेट, जिसमें आपका साइंस, हिस्ट्री और मैथ्स होगा। दूसरा आपका पेपर है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसे हम कहते हैं मैट, जो आज मैं इंशाल्लाह ताला लेने वाली हूँ। तो ये पेपर जो है बच्चों, ये पूरा 90 मार्क्स का है और ये 90 मार्क्स का जो पेपर है, इसमें पूरे जो सवालात होंगे, हर सवालात सिर्फ मेंटल एबिलिटी टेस्ट के ताल्लुक से ही पूछे जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये इम्तिहान का पैटर्न है। आपको हर पेपर के लिए 1 घंटा 30 मिनट यानी 90 मिनट दिया जाएगा, यानी आपके हर सवाल के लिए आपको मिल रहा है 1 मिनट। इसके बाद बच्चों देखिए, हर सवाल के लिए 1 नंबर है और आपको ये इंस्ट्रक्शन आपकी स्कूल में मिल गई होगी कि आपको किस तरह से पेपर को लिखना है। अच्छा प्यारे बच्चों, अब आप क्या करिए, आपकी बुक में ये जो मैं आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है प्री टेस्ट आंसर शीट, इसको इसी तरह हूबहू बना लीजिए। और जब मीटिंग 3 मिनट के लिए मैं आपको वक्त दे रही हूँ, 3 मिनट में जल्द से जल्द ये बनाइए और वापस मीटिंग जब हम रिज्वाइन करेंगे तब इंशाल्लाह मैं आपको 5 सवालात दूंगी। ये 5 सवालात आपके सेल्फ असेसमेंट के हैं। सेल्फ असेसमेंट मतलब आप अपना असेसमेंट करेंगे कि आप इस लेक्चर से पहले आपको NMMS के एग्जाम के स्पेशल मेंटल एबिलिटी के टॉपिक पर कितना ज्यादा उबूर हासिल है और आप 5 नंबरात में से कितने नंबरात हासिल कर पा रहे हैं। तो तमाम बच्चे ये शीट अपनी कॉपी में बना लीजिए। उसके बाद आपको हर सवाल एक सवाल दिया जाएगा, एक सवाल के लिए 5 मिनट। तो जल्दी से आप ये शीट अपनी बुक में बना लीजिए। मीटिंग खत्म होने में सिर्फ 4 मिनट बाकी है। ये शीट बनाने के बाद जब हम वापस मीटिंग ज्वाइन करेंगे तब इंशाल्लाह मैं आपको
एक 5 क्वेश्चन का पेपर सेट दूंगी जिसे हम प्री टेस्ट कहेंगे। प्री टेस्ट इसलिए जरूरी होता है कि आज आप इस लेक्चर में बैठे हैं तो आपकी प्रीवियस नॉलेज का इल्म होना जरूरी है, और ये मुझसे ज्यादा जरूरी आपके लिए है। तो आप लोग इस प्री टेस्ट का जो आंसर शीट है उसे बना लीजिए। आरिफ सर, अगर आप कुछ कहना चाहें जब तक बच्चे बना रहे हैं, आरिफ सर या मोमिन सर। जी जी मैम। आरिफ सर और बच्चों, आप मोमिन लोगों सर। ने ये जो आंसर शीट है अपने नोटबुक पे तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 लिख लीजिए। हर क्वेश्चन के सामने छोटे छोटे 4 दायरे बनाइए। तो इस तरह से आपके ये आंसर शीट तैयार होगी। अभी आपकी स्क्रीन पे सवाल आएगा। पहला सवाल आएगा, 1 मिनट तक वो सवाल रहेगा। उसमें 4 ऑप्शन होंगे। आपको वो सवाल पढ़ना है। आपके हिसाब से जो मुनासिब जवाब होगा उस नंबर के दायरे को आपको बताए गए तरीके से फिल करके काला करना है। नीले रंग की, ब्लू कलर की या ब्लैक कलर की इंक बॉल पेन यूज करना है। इसके अलावा आप दूसरी चीजें यूज नहीं कर सकते। और मीटिंग के ताल्लुक से मीटिंग खत्म हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हो सकता है कि मीटिंग खत्म नहीं हो और कंटिन्यू चले, क्योंकि ये बेसिक सेशन में पहला सेशन है। तो कभी कभी जूम की तरफ से हमको ऐसी ऑफर मिलती है कि हम कंटिन्यू 2-3 घंटे तक चला सकते हैं मीटिंग। तो अभी हमको पहले सेशन में ही पता चल जाएगा कि हमको हर 40 मिनट के बाद मीटिंग को रिज्वाइन करना है या हमें कंटिन्यू रहना है। बहरहाल ऑटोमेटिक अगर मीटिंग खत्म हो जाए तो आप लोगों को मीटिंग ज्वाइन करना है। अभी 3 मिनट और बाकी हैं और ये 3 मिनट तक आपने अपनी आंसर शीट बना ली होगी। मीना मिस, जब भी हम पॉज लेंगे तो आप कोशिश कीजिए कि रिकॉर्डिंग को पॉज कीजिए। जी सर। रिकॉर्डिंग पॉज हो जाएगी तो कुछ अननेसेसरी चीजें नहीं आएंगी, और उसके बाद फिर जब हम कंटिन्यू करेंगे तो हम लोगों को जो है रिकॉर्डिंग ऑन करना है। तो तमाम बच्चे, मैं समझता हूँ, अपनी आंसर शीट तैयार कर चुके हैं और प्री टेस्ट के 5 सवालात के लिए आप तैयार हो चुके हैं। इस सेशन में इंशाल्लाह आपको बहुत सारी टेक्निक सिखाई जाएंगी और साथ ही साथ कुछ बहुत ही छोटी छोटी मामूली चीजों को भी बताया जाएगा जो बज़ाहिर कोई अहमियत नहीं रखती, लेकिन मेरिट हासिल करने वाले बच्चे के लिए वो बहुत अहम होती है। आप लोगों ने ये आंसर शीट तैयार कर ली है। आप जब भी NMMS का पेपर हल करने के लिए बैठेंगे तो अपने साथ एक टिश्यू पेपर भी रखा कीजिए। टिश्यू पेपर इसलिए कि जब हम ब्लू रंग की ब्लू रंग की बॉल पेन या ब्लैक पेन की बॉल पेन से दायरे को काला करते हैं तो इंक बहुत फ्लो के साथ निकलती है और हमारे पेन की टिप पर